Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So I was reading one comment. Sir, when some news is not confirmed, it is an unconfirmed news, then why you are making video on that and it is leading to distraction, distractor for candidates. Now here you have to understand the concept of informal news, unconfirmed news and confirmed news. In management parlance, we say keep your eyes and ears open. Keep your eyes and ears open. What is the purpose? Even effective management always listen to rumors, always listen to any news that is coming the way, whether it is confirmed or unconfirmed. Because any news that is confirmed or unconfirmed make us cautious. This is not destruction. It is simply taking preventive measures because the news will come only on official website as and when it comes. But sometimes informal news, the news from various people may be also useful to us, although officially it is not available. So on this channel, we try to cover formal as well as informal information that comes our way either through various candidates, those are already working in banking sector, insurance sector and other sectors. Whatever information they get, they share with me and with caution. We share that information with you and always we say this is not a confirmed news, but this is something that we have heard. Purpose is to caution you. Purpose is not to derail your preparation. If you feel that this news is not of your use, you can ignore that. But it can be useful of other thousands and lakhs of our subscriber. This channel is helping lakhs of people across country. So some people may be feeling that they are being distracted, so they can avoid those videos. Nobody can force you to watch a video, but flow of information has to be seamless. Whatever information will come my way, I will definitely share this on this channel, and the people those are older and having association with this channel for years, they understand the importance of this channel. This channel is always right advice at right time, and we only share the information after cross checking. But still, since it is not on the official platform, we call it unconfirmed. Unconfirmed does not mean it is not a news worth taking note of. Unconfirmed from the sense it is not on the official website. It is coming from different sources from where this news may ultimately become the confirmed news, may not become the confirmed news. But the purpose is caution. You have to understand a cautious person always take care of every news that comes around him or her. That is the only purpose. Okay. Some people are having very narrow thinking. They see from the views point of view that sir is putting this video for views. We are having enough views. This channel has crores of views and lakhs of following. None of the video is prepared keeping in view the views. Even there are 100 views, if I feel that this information is important, I make a video. Now banking news, I make a video. Sometime I get only 400 views, 500 views on that. But I go on making those videos because these are important for you. Only few people understand the importance, not everyone. Everyone is not wise enough. And if he or she is wise enough, then he will understand the importance of a senior person telling something. So before making any loose comment, please think 100 times. That will help you. Now some people told Akash sir, he has stopped making videos in Hindi language. So who will be harmed? The candidates, those who are getting the information. Some people may get the sadistic pleasure that they have
hurt some person, but what at all they have gained? All along he was giving good information to all of us. Suddenly he is sad. He is not sharing the information on Hindi channel, only on Marathi he covered because he is having lot of respect in Maharashtra. So we have to be careful. If somebody is helping you, you should appreciate instead of hitting him or her. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा सर जब आपके पास अनकन्फर्म न्यूज़ है, कन्फर्म न्यूज़ नहीं है तो आप इसे क्यों शेयर कर रहे हैं? इससे हमारा ध्यान पलट जाता है और हमें अच्छा नहीं लगता. मेरा ख्याल ये एक इमेच्योर कमेंट है. अगर हम मैनेजमेंट की भाषा में बात करें तो मैनेजमेंट की भाषा में ये सिखाया जाता है कि हमें हमेशा अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने हैं. कोई भी खबर आ रही है, चाहे वो र्यूमर है, चाहे वो अदरवाइज है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है. क्योंकि कोई भी खबर जो आज अनकन्फर्म्ड है, कल कन्फर्म्ड खबर में कन्वर्ट हो सकती है. इसलिए जितनी भी सूचनाएं हमें मिलती हैं अपने सब्सक्राइबर से, अपने कैंडिडेट से जो बैंकों में काम कर रहे हैं या अदरवाइज काम कर रहे हैं, हम उसको थोड़े बहुत चेक्स लगा के जो हमारे पास पॉसिबल हैं उसको हम अपने चैनल पे कवरेज देते हैं ताकि आपको एक कॉशन हो जाए. आप उसका मकसद कॉशन है, उसका मकसद आपको सचेत करना है कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है. ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है. अगर ऐसा होगा और आपको पहले से पता है कि वो एग्ज़ाम शायद इस तारीख को हो जाएगा और अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, तो आप सचेत हो जाओगे और उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दोगे. उसमें क्या हर्ज है? अगर 10 सेकंड या 20 सेकंड की आपने न्यूज़ सुन भी ली तो उससे क्या इतना बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए आप? दुनिया भर में कितनी आप लोग चैटिंग करते हैं, कितने आप ऐसे चैनल्स देखते हैं जहाँ कोई मीनिंगफुल न्यूज़ नहीं होती और कोई किसी ने वीडियो बना दी किसी इंफॉर्मेशन की, वहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हो गए. ये कई बार क्या होता है कि हम अननेसेसरी रिएक्ट करते हैं. इससे क्या होता है कि जो आपको सूचना दे रहा है वो उसको लगता है यार मैं इनके लिए क्यों काम कर रहा हूँ, मैं क्यों इनको बता रहा हूँ. अब कई लोग मेरे को लगता है ऐसे सोचते हैं कि शायद ये वीडियो इसलिए डाल दी कि कुछ व्यूज आ जाएंगे. अरे ये आपकी सोच लिमिटेड है. हमारे चैनल पे करोड़ों व्यूज़ हैं. हम हर वो वीडियो डालते हैं जिससे मुझे ये लगता है आपके लिए यूज़फुल है. कितने वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें 200-300 व्यूज़ आते हैं, मगर मैं डालता रहता हूँ उस तरह की वीडियोस भी. क्यों डालता हूँ? क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है. आपको नहीं पता लग रहा आपके लिए ज़रूरी है, मगर मुझे पता है वो आपके लिए ज़रूरी है. और जिनके अंदर ये समझ है, जिनके अंदर ये सोच है कि सर ने ये वीडियो डाली है तो इसका कोई अर्थ होगा, वो उसको देखते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है. सब लोग थोड़ा ना सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ ही होते हैं ना. क्यों कुछ ही होते हैं? क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ों को समझ पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं. अधिकांश लोग तो एक बहाव में चलते हैं. अब आप देखो आकाश सर को कई लोगों ने ट्रोलिंग करी, कल से उन्होंने फैसला किया मैं हिंदी में वीडियो नहीं डालूंगा. किसका नुकसान होगा मुझे बताइए? वो एक सूचना आपको दे रहे थे, वो नहीं देंगे, उनका क्या बिगड़ेगा? उनका तो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, चलते रहेंगे. महाराष्ट्र में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, मराठी में वो वीडियो बनाते रहेंगे, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है. पर जो लोग मराठी नहीं समझ पाएंगे उनको लेट मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन. तो हम अननेसेसरी यदि किसी व्यक्ति को मतलब ट्रोल करते हैं, उसमें उसका कुछ नहीं बिगड़ता है. वो तो एक सूचना दे रहा है, जो उसके पास सूचना है उसने आपके साथ शेयर कर दी. आपको अच्छी लगे आप उसको अपना लो, बुरी लगे उसको जाने दो. मगर अननेसेसरी जब आप एक रिसीविंग एंड पे है, आपको सूचनाएं चाहिए भी है और कोई व्यक्ति आपको सूचना दे रहा है, उसको आप भला बुरा भी कह रहे हो, ये अपने मन से निकाल दो. कोई आपके व्यूज़ के लिए आपके पास आ रहा है. सब लोग संपन्न हैं. जो लोग इस तरह के चैनल चला रहे हैं ना, वो सब संपन्न हैं. कोई इसलिए नहीं कर रहा कि आपके व्यूज़ के लिए कोई ऐसी खबर प्रसारित कर दे जिसका कोई अर्थ नहीं है. जो खबर होती है कई बार कंफर्म्ड होती है, कई बार अनकन्फर्म्ड होती है, मगर लगता है कि चलो इससे कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, कैंडिडेट्स का अच्छा होगा, भला होगा, इसलिए उस बात को चर्चा की जाती है. अगर आपको लगता है मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, मत देखिए उसको. मगर लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए क्यों ना बनाएं वीडियो?
हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, उनके लिए वीडियो क्यों ना बनाएं। जिनको अर्थ लगता है कि ऐसे वीडियोस हमारे उनके लिए यूजफुल है वो देखते रहते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता है वो छोड़ देते हैं चैनल। कोई किसी को ज़बरदस्ती थोड़ा ना वीडियो दिखा सकता है, कोई भी नहीं दिखा सकता। अगर कोई सूचना मिल रही है और मुझे लग रहा है मीनिंगफुल है और आपका भला होने वाला है, तभी तो मैं उसको प्रसारित कर रहा हूँ। अपना टाइम निकाल रहा हूँ ना आपके लिए, मैं भी चैन से सो सकता हूँ। तो थोड़ा सा दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखिए और ब्रॉडर व्यू करिए अपना। ये नैरो माइंडेड जो थिंकिंग्स होती है ना, ये सेल्फ किलिंग होती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाती है, किसी का नुकसान नहीं होता इससे। अगर कोई व्यक्ति को एक खबर मिली, मान लो मुझे एक खबर मिली और मुझे विश्वास है आकाश सर पे, उन्होंने कोई बात मराठी में बताई और हिंदी और इंग्लिश में नहीं बताई, और मुझे लगा कि चलो मैं अपने चैनल पे वो बात आपको बता दूं ताकि आप भी एक कॉशियस हो जाओ, तो इसमें क्या बुराई है। कोई भी व्यक्ति के पास कोई खबर है, यदि उस खबर को फैला दिया जाए तो उससे किसी को क्या नुकसान है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको विश्वास नहीं है, मत यकीन करो उनकी खबर पे, ठीक है ना। ये तो आपका अपना दृष्टिकोण है ना, वो व्यक्ति तो आपके लिए मेहनत कर रहा है ना। हम उस सूचना को कैसे मान लें कि वो सूचना सही नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते वो सही है, हम ये भी नहीं कह सकते सही नहीं है। इसलिए हम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट उस सूचना को एक्सेप्ट करते हैं एज ए कॉशन। इसीलिए मैं कहता हूं अनकन्फर्म्ड है, कॉशन है कि इससे आप सावधानी पूर्वक अपना रास्ता का चुनाव कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं चुनाव करना है रास्ते का, वो आपकी मर्जी है ना, आपकी ज़िंदगी आपकी है। कोई उसके अंदर आपको ज़बरदस्ती किसी रास्ते पे नहीं ले जा सकता, सिर्फ आपकी मदद कर सकता है। मदद चाहिए तो मदद लीजिए, मदद नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।